ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਖਲੂਕ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਬਾਰਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੌਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇਖਣਾ, ਥੱਲੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਵਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਏ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਮਨ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਹੀਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ, ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਲੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਬਰਾਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰਾਹੇ ਨਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब, की हाल है? ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਿਧਰੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3-4 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। नहीं यार, मैं सोचना सब क्या पता करो तुसी भाई। गल ये है अलामा साहब के अलीम साहब भी ते मैं ते इस नतीजे ते पहुंचे कि गल हुई है मलक कैसर साहब ने कहा सी उस दिन कि असी भी ज़ाहिर इंसान ना, ज़ाहिर मियाँ साहब भी है ने, कुछ लोग बड़े हौसले वाले भी होंगे ने। मैं तो अलीम साहब ने फैसला किया है कि वही गल, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। जिस तरह का तुसी करोगे उसी तरह का ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ कोशिश करनी चाहिए है, माहौल ज़ाहिर अच्छा ही होना चाहिए अगर कोई गल है।
ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਪੜਾਸ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਹਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਦੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਮੈਨਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੀ 100-150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਲੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੁਲਾਈ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਾੜ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਏ ਸਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਅਗਸਤ ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਟਮਕਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਇਹੀ ਕਰਨ ਕਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ 2 से 3 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਦਾ। ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਮਾਤ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਭੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ मोहतरम जावेद साहब का मुनाजरा होया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-6 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ हुआ है कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮਾਤੀ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਦਵੋ। लो जी लीम साहब, हम तो थोड़े सुहेल साहब, कोई दलील नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके अंदर मेरी रूह आ गई है। जो आपने बातें की हैं ये सारी बातें इन्हीं अल्फाज के अंदर मैं कर चुका हूं आज से तकरीबन 6 से 7। अलीम भाई माजरत के साथ, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा दरख्वास्त कर रहा था 2-3 दिन से जो रमजान के दरमियान हमारी अहमदियों की तरफ से ब्रॉडें चली हैं वो मैं जमाती तालीम नहीं समझ रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छे सहेल साहब, आपने बड़ी प्यारी बातें की जिससे हैं, बंदे नु बड़ी अपने अच्छी नु बातें सामने की हैं। खलो के गल पे मैं कहना। वही अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात। और इस चीज से मुझे तकलीफ हुई है क्योंकि मैं इस बात की कई बार वजाहत कर चुका हूं कि जमाती जो भी अहमदी हमारा भाई है वो एक जिस्म की तरह है। जिस्म के किसी एक हिस्से में जख्म होगा, पूरा जिस्म उस तकलीफ का जो है वो दर्द महसूस करेगा। मोहम्मद सहेल भाई अहमदियों ने कौन सी गाली दी है उनको? मैं कल मौका दीजिएगा, रुक जाए ना यार, रुक जाए, बारी बारी बात ये करें। खाते हैं, अब ये गलत बात है। रुक जाए। कालू साहब, दलाइल जो है ना वो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपके से इख्तलाफ थोड़ी कर रहे हैं, हम आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने बहुत प्यारी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है मोहम्मद सहेल साहब को मैं ये बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं आपको बता देता सारे मोहम्मद सहेल साहब के पीछे यार रुक तो जाए फाड़ लो मोहम्मद सहेल नाज़र साहब नु, फाड़ लो बात नहीं मोहम्मद सहेल भाई बड़े प्यारे वजूद है, नेक वजूद है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, धीमे मिजाज के, बड़ी मीठी बातें करते हैं। उन्होंने जो बात अभी भी की है उस बात से कोई बंदा इख्तलाफ नहीं करता। मौलाना अमृतसरी साहब ने एक बात कही थी जो कि कल हमें सुनाई अलामा अहमद नजीर साहब ने कि उतों आईया 4 किताबां, 5वां आया डंडा। ठीक है, तो वो जो डंडा है ना वो सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो इस्तेमाल होता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपको ज्यादती कर रहे हैं, आपके साथ वो इंसल्ट कर रहे हैं। आपके मौकफ से हम इत्तेफाक करते हैं मोहम्मद सहेल भाई, और यही मौकफ है हमारा। लेकिन अच्छा अलीम भाई मुझे बताओ यार, मुखालफत किन्नी कोई हो रही है यार? नबियों के दौर से ज्यादा मुखालफत हो सकती है कदी साढ़े आम बंदे वास्ते? मैं एक फिक्रा बोलूंगा जो मुझे फिक्रा पहले दोस्त बोलते थे, वही फिक्रा मैं आपको बोलूंगा, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ समझ जाओगे। 2-3 महीने ठहर जो, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਹੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਹੇਲ ਆ ਗਿਆ, आजे मोहम्मद सहेल भाई बहुत अच्छे बंदे, मोहम्मद सहेल भाई सबसे मुनफरिद आए हैं, मोहम्मद सहेल भाई की तो बात ही कोई नहीं है। जब आप नीचे उतरते हैं तो वो फिर टका, ये बातें वो हैं जो मुझे समझ। अच्छा अलीम भाई एक गल्ला मेरे पीठ पीछे कर दें, ओ की मेरे अकाउंट च हजारों यूरो कट लेंदे ने, मैं बता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा है? मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन आप पे थोड़े दिन ठहरे, आप भी ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि वो बंदे जो बात करने के काबिल है उनसे बात की जाए, जो बंदे बात करने के काबिल नहीं है, जो बंदे सिर्फ और सिर्फ तज़ीक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट कर रहे हैं। अलीम भाई इस चीज का मुझे भी पता है यार, उनसे बात एक सेकंड अलीम भाई ऐसे ਹੁਣ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? अलीम भाई ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, एक मिनट ये मोहम्मद सहेल साहब आपको ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। अलीम भाई मैं अगर जाता हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मोहम्मद सहेल साहब आप खुलफाए वक्त की बात मानते हैं? खुलफाए वक्त की बात मोहम्मद सहेल साहब मानते हैं आप? चंगेज साहब नहीं रुके, मौका नहीं है ये बात का, उसकी बात गलत नहीं है मोहम्मद सहेल की, उसकी बात ठीक है उसकी। हम मोहम्मद सहेल की बात से इत्तेफाक करते हैं, एक किसी भी जो यार काले बहुत हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में है, बहुत ज्यादा जल्दी में है। मोहम्मद सहेल भाई आपको मेरी बात की समझ आई है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप हमारे जनाब बड़े अच्छे, और यही जमात अहमदिया की तालीम है। और ज्यादातर
मैं कहता हूँ कि 99% अहमदीज इसी सोच के हामिल हैं जिस सोच के मोहम्मद सुहेल साहब हैं। आप अच्छा अलीम भाई, एक छोटी सी बात और, आपने अभी बात की जी अहमद अली या कहीं पे भी हमारी तज़ीक करते हैं, मेरा काम है उनके सामने अच्छे अखलाक कहना। मेरे मुखातिब वो लोग नहीं होते जो टिकटॉक पे हमारे नीचे 10-15 लोग भी सुन रहे होते हैं, उनके जहन में ये बात नहीं आ सकती कि यार एक अहमदी आया था जो मुखालफों के आगे उनकी गालों के बदले दुआएं दे के अच्छी तरबियत दिखा के चला गया। क्या पता जो नीचे सुनने वाले हैं उनके दिल में इस तरह की कोई बात गुजर जाए कि यार अहमदी इतने अच्छे अखलाक के। आपकी बात ठीक है, 100% ठीक है, और ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, आप जहां पे भी जाएं अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, आपको कोई बंदा नहीं रोका। आपको किसने कहा आपको कोई बंदा रोक रहा है? नहीं, मेरा तो कभी ये सोच ही नहीं होती। मैं तो हमेशा इस सोच से अच्छे अखलाक पे कि यार मैंने अहमदियत का चेहरा खूबसूरत अंदाज में पेश करना है कि जो नीचे 10-15 लोग भी अगर सुन रहे हैं, किसी के दिल को कोई बात मेरी हिट कर जाए, कोई क्लिक कर जाए, वो अहमदियत की तरफ राग़िब हो जाए या उनकी किताबें पढ़ ले या उसके बारे में कुछ सोचना समझना शुरू कर दे कि यार ये इखलाक अगर जमात के हैं तो यार कर दे कि यार ये बहुत आला, बहुत अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए जी। ਓਏ ਨਿਦਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ देखा जिन्हें भी मुसलमान काले हैं, ये मॉडरेटर्स जो है, ये मॉडरेटर्स कौन है? इतने बेवकूफ लोग हैं आप लोग, मॉडरेटर्स भी और आगे उनकी बात तो पूरी अल्लाह के दीन के वारिस आ गए जी, वारिस आ गए। नहीं अलीम साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने जमात अहमदिया छोड़ दी और के बंदों की तरफ आ गए। अब हम बात कर रहा हूँ, वो अगर मैं जो केस बिल्ड कर रहा हूँ वो मेरे तायीद कर इतने आप तैयार हो जाए, आप तो नाड़ा फिर रही हो। गला पाट गया अलीम साहब, ਤੁਹਾਡਾ गला पाट गया लगता। वो तायीद हो रही है मौकफ दी। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲੋ। नारा रूहानी खज़ान, चीखा चीखा चीखा। बहुत खूब। आप मोहम्मद सुहेल भाई सुना दो। अब आराम से हम बात करें। अच्छा अलीम साहब अच्छा इखलाक जो अलीम साहब जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਤਲਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਹਿਆ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਲਿਖੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੈ ਏਡੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਅੰਗਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਐਸ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੋਡਰੇਟਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? को जिन्हें लोग मैं दो सुनिया जे दोवां दी बकवास सुनी जे। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं कुछ नहीं हले सुनिया। मैं कोई किसी बंदे नूं थल्ले ना लाए, मैं कुछ कर रहा हूं ना, तुहानूं समझ नहीं है, तुसीं गल ही नहीं यार करदे को। मैं किसी नूं ला रहा वां, किसी नूं जगह ते बना रहा वां, कोई उत्ते किसी नूं चुक रहा है, कोई किसी नूं चुक रहा है। हद है बई। हाँ जी सुहेल साहब, तुसीं बड़े बन रहे सी इत्थे अखलाकियत दा मुजाहरा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। सुहेल साहब मौजूद ने। सुहेल साहब अच्छे अखलाक दे वाले। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ऐसे चौधरी साहब आपके लिए बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। ਹਾਂਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਲਿਆਓ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ।
ਐਮ ਦੀਆਂ ਪੱਕਿਆ ਐਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। खामोश हो जाओ ऐसे चौधरी मैंने कुरान पढ़ के सुनाना है, आपने गालियां देनी है। अब देख लेते हैं जीत किसकी होती है। ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਾ, 3-4 ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰੁਕੋ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਲ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਸਰ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 70 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਵਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ 100% ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 4 ਗਵਾਹ ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी चौधरी साहब, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਏ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। अभी 2-3 दिन पहले जेड़ा बाप और बेटी के साथ जना कर रहे सी, वो तो खुलेआम वीडियो सारी दुनिया ने वेख ली है। एक तानू वो निदा नसर वाला खिलौना लभ गया, वो तुसी बीन बजा के बजाते रहो। मैं तानू कोई 5-6 साल तो जानदा, तुसी 5-6 वर्के लिख के अपने कोल रखे ने। वो जिथे भी जाते ना, तुसी इस तो वध तुहाडा कोई अगे नहीं हैगा। वो 5-6 वर्के तुसी फौरन पाड़ते रहने ने, उन्हां नूं दोबारा रिपीट टैलीकास्ट के तौर ते। मैं तुहाडे कोल सिर्फ सवाल पुछिया सी कि तुसी जमात नूं छड्डिया है या तुहाडा इखराज होया, इहदा मैं नहीं जानदा। ये खैर वो तो साडा इस चीज़ ते ईमान है कि ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਜੜ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਅਕਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਅਕਾਇਦ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਅਕਾਇਦ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਅਤੁਲ ਵਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਪ ਸ਼ੇਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, मेरी वारी है कि मैं बोलांगा जी। अजय तलत साहब अपना ये बोल रहे हैं जी, अपना सहेल साहब ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਅਤੁਲ ਵਿਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਰੇਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਕੰਮਲ।
ਅੱਛਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਐਡ ਹੈ, ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੇਪ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਤਲੀਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਮਦੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਪ ਰੂਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। अच्छा, दोबारा ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। मोहम्मद सुहेल भाई आला अखलाक के साथ दोबारा जवाब दे। मैं ये अर्ज कर रहा था ऐसे चौधरी साहब को कि जी अल्लाह मियाँ जो है वो हमारे जवाब खुद ब खुद दे देता है, हमें तो जवाब देने की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं पड़ती है। एक इन्होंने के पास बीन आ गई है निदौल नसर वाली, जिसका एक इनफरादी हैसियत में मामला है। इनफरादी हैसियत से कभी भी इजमा के ऊपर इनफरादी हैसियत को नहीं लिया जाता, लेकिन इन्होंने कोई जब से ये ऑडियो आई है उसको इतनी मैनिपुलेशन है, उसकी हकीकत अभी हम बता भी नहीं सकते, या उसकी क्या हकीकत बताएं, हमें कोई पब्लिसिटी स्टंट करने की आदत तो है कोई नहीं। इनके पास एक बीन आ गई है, अब इन्होंने वो बजाते रहना है। जब वो बीन बजा के या खिलौना इनको मिल गया, वो खेल खेल के जब थक जाते हैं फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। फिर जब इनको होता है जमात अहमदिया का फोबिया, उस टाइम फिर वो खिलौना उठा लेते हैं। इसके अलावा तो इनके पास दलील ही कोई नहीं। आप जो भी ये 4 गवाह की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील है कुरान या हदीस की, तो आप वो सामने रख दें कि जी ये जमात ने कुरान और हदीस के खिलाफ बात की है, वो आप हवाला सामने लगा दें, तो फिर देख लेते हैं उसको, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये ठीक है जी, जमात। आ गया पॉइंट आपका, आ गया। ऐसे चौधरी साहब, अब इंतहाई अच्छे अखलाक से दोस्त ने बात की है, आप मुतमिन हो गए? आपको जवाब मिल गया? जी, यही मैं अपना अलीम भाई अर्ज कर रहा हूँ। वो साइडियो में निदा भी कह रही है कि जमात जो ये क्लेम कर रहे हैं मिर्जा मसरूर साहब के 4 गवाह रेप के लिए होना चाहिए, ये गलत है। पहले तो आप ये बताएं, ये जो तलस अपना सुहेल साहब हैं, कि ये जो 4 गवाह मांग रहे हैं, ये मिर्जा मसरूर साहब की आवाज है कि किसी और की है? चौधरी साहब एनो की फर्क? 1 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 1.5 2 मिनट का और एपिसोड है, बर्दाश्त करके सुन लो, कोई नहीं जी। सुहेल साहब, यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੇਪ ਜ਼ਨਾ इसके अलावा कोई दूजी गल हैगी? यार मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਪ ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? नहीं, बात ये है कि जब मैं इस जमात मतलब अगर तुसी जमात छड़ी आ, तो मैं हाँ जमाते अहमदिया के जो दावे हैं 150 जब से जमात का क्याम हुआ है कि जी सानू साडे दलाइल च को हरा के विखाए, इतना मतलब असी मुस्तकबिल च समझ लिए कि ऐसे चौधरी साहब को कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके जमात दे दलाइल जेड़े जमात दे बुनियादी दलाइल हैं, जिस दलाइल च जमात खलोती है, उस बुनियाद नूं हिलावांगे। असी ये उम्मीद रखे तुहाडे कोलों कि तुसी कुरान और हदीस दा मुताला करके जमात दे दलाइल दे खिलाफ तुसी अपने दलाइल पेश करोगे। सुहेल साहब, मुझे ये नहीं पता कि अलीम भाई ने मुझे कितना टाइम देना है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। मैं मेरा भी सवाल बड़ा सादा सा ना यार पायन यार, ए वैसे तुहाडे कोल मैं बारी से सुन, बारी मेरी 1 मिनट मेरी बात सुन ले। चलो मैं जमात अहमदिया का हिस्सा रहा
मुझे ये बताया गया कि 72 दोज की गुनाहगार और 73वां जनती वो है जी जमात अहमदिया, ये जनती फिरका। चले और जनती फिरके की जो लीडरशिप है वो है जी अपना। ये आखिरी सवाल है आपका जी, आखिरी सवाल है, आप इसको कर लेंगे आखिरी आखिरी एक बारी आपकी। हाँ, मैं अलीम भाई आपने जो मुझे पहले टाइम दे दिया मैं वही शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं तो यही बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने मुझे 5 मिनट दे दिए। मैं आखिरी सवाल छोड़ देता हूँ। ठीक है, बहुत मेहरबानी हाँ जी, चौधरी साहब आपकी जी। थैंक मोहम्मद सुहेल साहब, आप जवाब आपने उनको दे दिए है, मुतमिन हो गए हैं वो? इसका तो बड़ा आसान सवाल है, शुक्र है इन्होंने कोई अच्छा सवाल भी किया कि जी 72 जहन्नमी और एक नहीं जन्नत। नहीं, अभी वो उन्होंने सवाल छोड़ दिया, मुकम्मल नहीं किया। जो पहले उनके सवालात थे उनका आपने इखलाक से अच्छे जवाब दे दिए, मुतमिन हो गए वो? मुतमिन तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अलीम दिल का साहब थोड़ी ये जा। तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो मुतमिन हम वो उनसे कभी पूछ रहा हूँ, मुतमिन अभी उनसे होंगे। पूछता हूँ, अभी उनसे पूछता हूँ। पहले मोहम्मद सुहेल साहब, अच्छा अलीम साहब यार, एक तो मेरे मतलब का सवाल आया है, उसका जवाब मुझे आता उन्होंने, है। हालांकि उनको ये मैंने दरखास्त की मिनट थी दे उनके कि साथ कोई ना, मुझे गाली 2 गलोच मिनट या दें। कोई जहर निकाल लें बीच में से। नहीं अगर आप कोई कहते गाली हो तो मैं गलौज दलीले नहीं, सवाल ले लेता हूँ। कोई गाली गलौज अलीम साहब मेरे मतलब का सवाल आया, मुझे बराए मेहरबानी वो वो किया जवाब नहीं है देने उन्होंने। ये था यार एक सारे दोस्तों को एक मैंने डेमो दिया है, ये डेमो था, फैसला आपने खुद करना है। मैं आगे तशरीह की मैं नहीं करता। मोहम्मद सुहेल साहब, आप नाकाम रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं आपने दिया उसको, एक कोई ढंग का जवाब आपने नहीं दिया। ये जो इखलाक का अभी आपने जो बताया है उनको अखलाक से, वो अखलाक से कोई मुतासर नहीं हुए, उनको कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, अब इसकी तस्दीक करने के लिए मैं शायद दोबारा चौधरी साहब को ऊपर लेता हूँ। चौधरी साहब से अच्छा अलीम पूछते हैं। साहब यार, वो मुझे पता है मैं हार गया हूँ मुनाजरा, नहीं मुझे मुनाजरा कोई हारे मसला नहीं है। है। मैं उनको आपने टच भी नहीं किया और आपने सिर्फ आए बाएं शाएं करके। मैं मुझसे पूछता हूँ चौधरी साहब, जरा ये वजाहत से जरा बताए, जरा आपको जवाब मिला है या वाकई मिला है, या आप ऐसे ऊपर से कह रहे हैं नहीं मिला आपको जवाब? नहीं जी बिल्कुल, सुहेल साहब ने जवाब दिया ही नहीं है, सारे दोस्त सुन रहे हैं। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। दिया ही नहीं है, आपने खुद सुन। बहुत बहुत मेहरबानी जी। सुहेल साहब, आप उनको जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ आपने आला अखलाकी दिखाया, तो आप तनकीद भी कर रहे थे सारे अहमदी दोस्तों की। साहब जो चीज मेरे पास थी वो मैं वही दे वो सकता। आपसे हम लेते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपसे वो मैं चीज। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब देने दे यार, वो आखिरी सवाल, उसका जवाब मुझे बड़ा अच्छा आता है, वो बराए मेहरबानी देने दे, आपकी बड़ी मेहरबानी वो होगी। किया नहीं है अभी मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने वो आधा जो कर शुरू लिया था रहे ना। थे, मैंने उनको टोक दिया था जी। अच्छा वो 72 जानवी और 73 वाला, उसका जवाब ही तो मुझे आता था, वो तो देने हाँ। देते। दे जनाब, दे रह ना जाए। हाँ जी, बड़ी नवाजिश जी, सिफारिश का आपकी। बेवकूफ को बार बार लेते हो ये फैसल को। अच्छा जी, उसका जवाब बड़ा आसान था कि वो खत्म हो गया मॉडरेटर्स को कि कोई बंदा कभी ना उठाए किसी को। मैं तरले डाले, ऐसे लेकिन चौधरी पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्यों इनको इसको ले लेते हो, मुझे समझ नहीं आती। क्यों डरते हैं अलीम साहब, क्यों इतना डरते हैं? मैं को गाली देता हूँ यार, मैं को स्कैन लगा रहा हूँ, मैं को हवाला सुना रहा हूँ यार। तो आप लोग तो यार टैक्स भी बंद कर देते हो, आपके अपने बंदे बैठ के ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं, उनको आप लोग कुछ कह नहीं सकते। इसको व्हाइट सॉस वाला पास्ता खिलाओ अल्फ्रेडो साहब यार जो बात करें आप सुहेल साहब, मैं आपकी सुनना चाह रहा हूँ जवाब आपका। बात ये है कि ये जो आया था जट को क्यों कह रहे हैं वेट करो, उसको कॉल पे ले यार, वो बंदा कॉल पे आना चाह रहा है, आपकी जमात का बंदा। जमात छोड़ी है, ये निदा के केस से पहले यार उसने तस्करा खोल लेना ना स्ट्रेट अवे, वो चाहते नहीं है अभी तस्करा खुले। नहीं वो कह रहा है मुझे उठाए, मैंने बात करनी है, ये ज्यादती है, आप अपने लोगों को नहीं उठा रहे कॉल पे। पहले वैसे मोहम्मद सुहेल नासिर को एक ही जवाब आता था, बेचारे के पास एक ही जवाब था, उससे वो भी एक ही जो उसका जवाब था वो भी नहीं सुनना चाहते यार। देखो कितना जुल्म है। यार तुम नहीं पर ये ज्यादती है ना, जट को कॉल पे नहीं ले रहे, उनकी जमात का बंदा है। लेकिन यार जट से पहले जो मोहम्मद सुहेल नासिर को जवाब आता है, जिस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था, वो बेचारा उसके अंदर नहीं दे सका। बार जवाब आता है वो तो उसका सुन लो। मोमन इकट्ठे हो गए ने सारे, अल्लाह खैर ही करे, सारे मोमन इकट्ठे हो गए ने हुण। वो शरीफ आदमी साहब उनको आगे कर दिया। चले जट साहब भी आ जाते हैं, जट साहब भी आ जाते हैं। टीम भाई प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, तलत साहब आपसे और अलीम साहब से नासिर साहब का जवाब सुन लें प्लीज, फिरकों वाला।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जट साहब। मैंने सेल साहब से पूछना था कि आपने बड़े अच्छे जवाब दिए उनको, सारे मुल्क की गालियां खा के आप ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ फायदा हुआ है आपको या फिर आप नीचे उतर जाते आप जवाब नहीं देते तो? और जवाब मिले भी नहीं है, जवाब पहुंचे भी नहीं है। नहीं, अगर जब गालियां निकाल रहा था तो आप नीचे उतर जाते, गालियां क्यों सुन रहे थे? अब जवाब भी नहीं दे सके। तो सुबह कह रहे थे मैं जहाँ रोड पे जाता हूँ मैं आला ज़र्फ दिखाता हूँ, इस जो माशरा चल रहा है इससे आला ज़र्फ नहीं चलता, इधर मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है भाई साहब। तो तस्करे की तिलावत करके सुनाएं आप, जट बताएं कैसे जवाब दिया जाता है। रुके और फैसले तेरे जम्मन दे कुत्ते दे बच्चे लानत। एक और सब जमाते अहमदिया का फैसला है, आपने फरमाया है कि दलाइल से मुंह बंद करने हैं। दलायल तो मुंह बंद किया, दलायल कूदा नहीं पिया। सेल साहब इस तरह नहीं चलता जिवें तुसीं आके मशवरे मारने ना या गाला फिर थल्ले उतर जा जवाब देवो। मैं दलायल दे रहा जाके मैं फलान कर रहा। अलीम साहब मेरा तो मुंह बंद हो गया। बहुत शुक्रिया। ऐसे चौधरी ऐसे चौधरी ये बताओ, ऐसे चौधरी साहब आप बताओ कि आप अहमदी हो, आपकी माए बहनें सब अहमदी हैं, उनके से किसी के साथ रेप हुआ है? ये जी जवाब है जी मेरे सवाल का अलीम साहब। नहीं जानना चाहते हैं ना आपकी तकलीफ क्या है। और दूसरी बात ये कि निदा नस्ल के केस में क्या होना चाहिए, इस्लामी कानून के मुताबिक क्या है? कुरान करीम से आयत पेश करें कि अगर एक औरत जो है किसी मर्द पे इल्जाम लगाए और उसके गवाह ना हो तो फिर क्या एक्शन लेना चाहिए? तो ये पेश करें आप कुरान से ना, बताएं हमें कि क्या फैसला होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक। मुझे अलीम भाई से पूछ दें कि आप टाइम कितना है तो फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। नहीं टाइम आपको ये सवाल का जवाब इससे नहीं, अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, मैं सिर्फ फैसिलिटेट करूंगा। अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं जैसे चौधरी साहब, जिस तरह के सवालात होंगे उस तरह के जवाबात होंगे तो मोस्ट वेलकम। चले चौधरी साहब ये बताएं कि इसका कुरान करीम में क्या है? अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, गुफ्तगू आपकी अरेंज। निदा की बजाय मिसाल के तौर पे आप पे इल्जाम लगता कि जी आपकी बेटी कहती जी ऐसे चौधरी ने मेरे साथ ज़िना किया और ये केस पब्लिकली वो बताती, तो फिर आपके जो मुसलमान होते वो क्या फैसला करते, बता दें जी। चलें शाबाश। अलीम साहब या तो कालू साहब की बात करवाएं या क्या नाम है जट साहब की बात करवाएं प्लीज मेहरबानी। नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सवालात करें, जवाबात उस तरह के। साहब आपको इतबार नहीं है रहमत बाबा के, आपको डर है वो गालियां देगा रहमत बाबा। आपको इतबार नहीं है रहमत बाबा के। फैसल भाई आप हर बात को उचकते हैं, फिर आप कहते हैं जी वो बंदा बोल रहे हैं। अब उन्होंने मुझसे एक बात की है लेकिन आपने उचक ली बीच में से। अब वो सवाल कर सकते हैं, कालू साहब के पास भी है, मेरे पास। देखें कोई भी आमदी भाई बात करना चाहे, मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, कोई लेकिन कम अज कम एक आमदी दोस्त बात करे बस। जी मैं कर रहा हूँ चौधरी साहब, तमीज से बात करेंगे, प्यार से, कोई सख्त बात। और आप भी कोशिश कीजिएगा सख्त बात ना करें, उसका रिएक्शन जो है उसी तरह का ही आएगा। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मिसाल के तौर पे आप अपना थोड़ा सा तारफ करवा दें। मेरा नाम तो ऐसे चौधरी है, मैं इधर कनाडा में हूँ, आप अपना नाम बता दें प्लीज। जी मेरा नाम मिस्टर बम्बास्टिक है और मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ। मिस्टर बम्बास्टिक? हाँ जी। अच्छा जी, आपका तल्लुक जमात अहमदिया से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। जी अब मुझे लगता है अलीम भाई ने बाकी दोस्तों को उतार दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है। इसलिए आपने फरमाया है वन टू वन बात हो जाए, इसलिए फरमाया है ऐसा आपने। हाँ कोई बात नहीं है। जी लो जी मिस्टर बम्बास्टिक साहब, मैं आपको किस नाम से पुकारूं, पहले ये थोड़ा सा मुझे बता दें। मिस्टर बम्बास्टिक के नाम से आप मुझे पुकारें। जी ठीक है जी, मिस्टर बम्बास्टिक साहब। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? ऐसे पुकारूं? ऐसे से बनता क्या? सगीर अहमद ऐसे चौधरी मेरा नाम है, आप इससे पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। सगीर ना कहूँ आपको? ना कहें, ऐसे चौधरी मेरे लिए मुनासिब मुझे क्योंकि आपके नाम का पता है, मेरी आपकी बेगम से गुफ्तगू हुई है, मैं वैसे ही आपको बता दूं एज ए डिस्क्लोजर। चलें बात मेरे पास निदा का नंबर भी है और मेरी निदा के साथ बात भी होती है। ठीक है करें, खूब करें जनाब मोहतरमा, कोई बात नहीं। चलें आप आगे बात करें। जी मेरा ये सवाल था आपसे कि आपने कहा है कि इस्लामी फैसला क्या होना चाहिए था, तो मैं आपसे पूछता हूं जी
यही इल्ज़ाम निदा की बजाय आपकी बेटी आप पे इल्ज़ाम लगाती कि ऐसे चौधरी साहब ने मेरे साथ ज़िना किया और पब्लिकली वीडियो रिलीज़ हो जाती, तो मुझे बताएं कि आपके जो मुसलमान भाई हैं, आप मुसलमान हो चुके हैं ना, तो आपके मुसलमान आपके लिए क्या फ़ैसला करते, क्या फ़ैसला आता उसका कुरान और हदीस की रोशनी में, बताएं। अभी किसी दोस्त का माइक ओपन है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। तल्ला साहब माइक म्यूट कर ले अपना आप। माइक ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ जवाब दो कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या फैसला देंगे आपके उलमा आपके मुतल्लक। बात ये है, देखें जो निदा नसर की आइडियो है, बात है उसकी, आप एक फर्जी बात की तरफ ना जाएं, जो सामने बात है उस पे बात करें। चौधरी साहब आपका एतराज है कि हमारा फिरका जो था वो इस्लाम का, हम कहते हैं कि हम नाजी हैं और 72 जहन्नमी हैं। हमारा जो फैसला था वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए था। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जमात अहमदिया गलत किधर गई है, क्या फैसला होना चाहिए था, आप बताएं। मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर यही आपकी बेटी आप पे इल्ज़ाम लगाती तो आपका इस्लाम क्या फैसला करता। देखें, लगाती वो बाद की बात है, जो लगाया गया है उस पे बात होगी, जो सामने है। आप मेरे भाई मफरूजे पे बात ना करें। सुने भाई साहब मोहतरम ऐसे चौधरी साहब, आपने इतराज किया क्योंकि आपको पता है कि गलती कहां पे हुई है, आपको पता है कि हमने गलती किया, हमने सही फैसला नहीं किया, मान लिया। मैं तो पूछ रहा हूं कि सही फैसला क्या होगा इस केस में, फिर सोल्यूशन बताए ना। आप तो सिर्फ प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहे हैं। वो तो कोई भी अंधा लूला काना पागल मेंशन कर सकता है कि जी ये प्रॉब्लम हुई है। अक्लमंद बंदा आपकी तरह का पढ़ा लिखा आलम तो ये है जो सोल्यूशन प्रेजेंट करे इस्लाम कुरान और हदीस की रोशनी में, कि ये होना चाहिए था, ये इन्होंने गलत किया। प्रॉब्लम नहीं सिर्फ इंडिकेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो कोई भी अन्ना लूला काना पागल कह देगा जी ये गलत हो गया, जी अंधेरी आई हुई है, जी बारिश हो रही है। अक्लमंद बंदा पढ़ा लिखा तो ये बताता है कि बारिश क्यों हुई है, अंधेरी क्यों आई है। आप ये बताएं कि फैसला किधर गलत हुआ है, क्यों हुआ है, कुरान और हदीस की रोशनी में रसूल अल्लाह की उसवा हसना के मुताबिक बताएं जी, गलती कितने हुई है, की होना चाहिए सी फैसला पेश करें। आप मानते हैं, पहली बात आप ये बताएं, आप मानते हैं कि फैसला गलत किया मिर्जा मसरूर साहब ने? यार नहीं आप मानते? मेरे भाई साहब मुझे पता ही नहीं है कि हल क्या होना चाहिए था इस्लाम की रूह से। जब आप नहीं वो हाल मैं बताता हूँ ना, मैं आप मुझसे हाल पूछ रहे हैं, पहले आप माने तो सही, या माने कि फैसला हमने सही किया है, आप इसको गलत कह रहे हैं, या आप कहें कि फैसला गलत हुआ है, आप इसका सही हाल बताएं। यार पहले मुझे हाल का ही नहीं मेरे भाई साहब पता, तो मैं कैसे फैसला करूं कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। आप मैं आपसे अलग-अलग करके पूछ लेता हूं, आप उस पे आपको समझ ना आए तो फिर मैं उसका साथ साथ हाल भी बताऊंगा, ठीक है? मिर्जा मसरूर साहब निदा नसर की आइडियो में कह रहे हैं, अगर तेरे साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में मेरा ये मशवरा है कि रेप करने वालों ने तौबा तैब कर ली होगी, आप अपना मुंह बंद कर लें। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा, शेयर ही ना करें प्लीज, मेहरबानी। हाँ ठीक है, उन्होंने बोल रहे हो, हाँ जी, उन्होंने जो रुके लगा दो ऑडियो, रुके मेरी दोनों दोस्तों से गुजारिश है, अपनी हर तरफ से हाशिया राई नहीं करेंगे, जो बात है उनको उन्हीं अल्फाज में बयान करें, हाशिया राई नहीं करें। अगर हाशिया राई एक तरफ से होगी तो फिर दूसरी तरफ से भी वैसी ही हाशिया राई। सब ऑडियो लगा दें, किधर ये नहीं ऑडियो तो मेरे ख्याल में सुनी नहीं है, लेकिन अगर वही वाला पार्ट लगा दें या वो सही अल्फाज में बिल्कुल वो बता दें जी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो। या अगर ऐसा पहले बात तय कर लेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, तय कर नहीं, बस ये इनसे पूछें कि फैसला गलत था, अगर गलत था तो सही फैसला हमें इस्लामी रूह से बताएं, बात खत्म, इससे आगे नहीं हमने चलना। ऐसे चौधरी साहब अगर वो फैसला गलत था ना जो खलीफा वक्त ने किया है, जो फैसला सही है इस्लामी नुक्ता नजर से, वो हमें फैसला कालू साहब यार ये मॉडरेटर्स का मुझे समझ नहीं आ रही है। और रुक जाएं अल्लाह के बंदों, रुक जाएं। मिस्टर मोबेस्टिक बहुत ठीक जा रहे हैं, उन पे एतमाद करें, वो बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कालू साहब माइक नहीं आपने खोलना, माइक नहीं खोलना।
जी चौधरी साहब बताएं, हल बताएं कुरान और हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह की उसवा हसना में कि अगर मिसाल के तौर पे यही इल्ज़ाम खुदा नखास्ता आप पे लगता, आपकी बेटी कहती कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये किया, जो निदा नसर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, तो आप के जो उलमा हैं वो क्या फैसला देते, क्या होते कुरान और हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह उसकी उसवा हसना में सही फैसला फरमाएं जो कि हमसे गलत हुआ है, ठीक कर दें उसको। जी चौधरी साहब इरशाद, माइक पटो आओ। और मेरा हाल जी जी अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मिस्टर बम्बास्टिक साहब, आप इस तरह ना करें। जो सामने निदा नसर का मामला है उस पे बात करें। जी मैं निदा नसर आपने के मामला मुझसे हल पूछा, मैं उसका आपको हल बता देता हूँ। जी और जहां से मिर्जा साहब ने जो मैं समझता हूँ गलत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप मुझे बता दें गलत है तो कह देना गलत है, सही है तो बता देना सही है। जी इरशाद। जी मिर्जा साहब मसरूर साहब निदा साहबा से पूछ रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अगर आपके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। नहीं मेरा मशवरा, छोड़ दो, ये हमने नहीं सुना। बात ये है कि ये केस हुआ, ये उस आइडियो में नहीं है। अल्फाज यही है चौधरी साहब, मुझे मौका दीजिए, मैंने हाशिया से मना किया है। चौधरी साहब अल्फाज यही है, अल्फाज में से की गलती हो सकती है, मफहूम यही है। अच्छा रेप का लफ्ज है वहां पे? मफहूम नहीं। मिर्जा मसरूर साहब वहां पे फरमा रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ। चौधरी साहब मेरा मशवरा है आप खामोश हो जाएं। चौधरी साहब, मोहतरम चौधरी साहब, बहुत अदब से मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपकी बहुत काम में आवाज ठीक करें अपनी। पहले सवाल का पहले हल निकाल लें। पहला सवाल ये था आपका कि जी आप अपने आप को नाजी फिरका कहते हैं और आप गलत फैसले करते हैं, अन इस्लामिक। निदा नसर के साथ रेप हुआ, आपके जो खलीफा साहब हैं उन्होंने कहा जी इस पे खामोशी इख्तियार करें, नहीं 4 गवाह लेके आओ। अभी आप बताएं कि इसका हाल कुरान और हदीस की रोशनी में, उसवा हसना की रोशनी में क्या होना चाहिए जब कोई औरत जो है वो इल्ज़ाम लगाए है अपने बाप के ऊपर या किसी के ऊपर भी कि उसके साथ रेप हो गया, तो क्या हाल होता है कुरान और हदीस की रोशनी में? सर मैं उसका हाल भी बताता हूँ, अगर आप साथ साथ बात को आगे चलने दें। नहीं आगे तभी चलेगी बात ना, आगे नहीं, इसका हाल बताएं क्या है इस्लाम की रूह से। जी चौधरी साहब इल्मी बात पहले कर लेंगे, है क्या फिर आगे चलते गए तो हम तो बीच में तो फिर किचन में हमारा मकसद जो है वो मसले को हल करना है। पहले आप लोगों ने हल सुनना है, पहले आप माने कि जो हाल जमात ने किया है पहले मुझे उसका बताएं थोड़ा सा कि वो हाल सही हुआ है कि नहीं। नहीं वो आपके मुताबिक तो गलत हुआ है ना, तो उसको सही करके दिखाएं हमें। जी हमें नहीं पता गलत सही है, आप बता दें। ऐसे सही करें। देखिए मेरे मुताबिक सरासर मिर्जा मसरूर साहब ने गलत फैसला किया है। हाँ तो ठीक करें ना, ठीक करें, शाबाश, सही करके दिखाएं। अब मैं अगर आप कहते हैं नहीं सही, अपना नहीं गलत हुआ, तो फिर मैं उसकी तफसील में जाता हूँ। अगर आप मेरी बात सुन लें प्लीज। ठीक करें ना जी, सुनाएं सर। मिस्टर बम्बास्टर साहब, मैं कहता हूं कि मिर्जा मसरूर साहब ने निदा साहबा के साथ जो आईडियो में फैसले किए हैं, गुफ्तगू की है, वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई है। अगर आप कहते हैं कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई नहीं है, तो फिर मैं आईडियो की तफसील में जाता हूं। अगर आप कहते हैं, मेरी बात सुन लें यार प्लीज, अगर आप कहते हैं कि ठीक है उन्होंने किए हैं तो इसका हल बताएं, फिर मैं तफसील में नहीं जाता, फिर मैं आपको हल बता देता हूं। मेरे मोहतरम, मैंने पहले भी अर्ज किया, शायद आपको समझ नहीं आई। अभी आपने तो हर चीज ही हमारे लिए मुतशाबे बना दिया ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं किया। जब आप कुरान और हदीस की रोशनी में पहले शरई, कानूनी दुनियावी पे हम बाद में जाएंगे, शरई तौर पे जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के मुताबिक
کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نہیں ہوا؟ پیش کریں جناب، گو ہیڈ، شرعی فیصلہ بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں دوبارہ اس بات کو لمبا نہیں کرتا کیونکہ میں آپ اتنا نے بہت لمبا کر دیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ رہی ہے میرے خیال میں نہ بولے، میری بات میں نہ بولے، میں آپ کی بات میں نہیں بولتا۔ میں نے دوبارہ ایک میں دوبارہ وہ لائن ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے وہ پھر وہی جواب دینا ہے تو پھر میں اپنا ٹھہر جو آپ نے وہی بات ریپیٹ یہ کرنی ہے کہ پہلے میں اس کو غلط مانوں کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یہ کہنا چاہتے ہو؟ میں بس یہ فیصلہ پوچھنے ہے کہ اسلامی شرعی عدالت دے مطابق فیصلہ 10 کی ہونا چاہیے۔ کالو جی ٹھہر جو محترم چودھری صاحب، آپ نے یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم مانے، آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے جی آپ احمدیت کو چھوڑے، ہم میں شامل ہو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کہ یہ حدیث غلط ہے کہ ٹھیک ہے، یا قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا کہ میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں، آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے۔ ابھی آپ نے پرابلم انڈیکیٹ صرف کی ہے، اور وہ تو کوئی بھی اندھا، لولا، کانا، لنگڑا، پاگل بتا سکتا ہے کہ جی یہ جرم ہو گیا ہے، یہ غلط ہوئی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کا تو وہی حال ہے کہ پکاسو تھا نا، وہ بہت بڑا نا آرٹسٹ تھا، اس نے تصویر بنا کے نا تو چونک میں لگا دی، اس نے کہا جی اس میں سے غلطیاں نکال لیں، اور اگلے دن جڑی تصویر سی نا وہ کالی ہو گئی، نوے کر۔ اگلے دن اس نے دوبارہ وہی تصویر لگائی، اس نے کہا غلطی نکالنے کے بعد اس کو ٹھیک بھی کر دیں، تصویر بالکل نہیں کی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں کسی نے نکال سکا، سارے نس گئے۔ ابھی آپ کا وہ حال ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ حل کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو اسلام کا پتہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں، آپ اچھے اسلام میں چلے گئے ہیں، ہمیں اسلام کے مطابق، شرع کے مطابق حل بتائیے کیا ہے۔ ہم اپنے خلیفہ کو خط لکھیں جی مسٹر ایس اے چودھری صاحب نے یہ حل بتایا، آپ نے یہ نکالا ہے، ہم کنفیوز ہیں جی، صحیح بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلے میں حل بتا دیتا ہوں، علیم بھائی میں حل بتا دوں؟ ہاں جی بتا دو علیم بھائی میں حل بتا دوں؟ وہ بتا دے یار، میں بات پہ کرنا امین علیم بھائی سے آپ نے کوئی رجسٹری کروانی ہے؟ علیم صاحب ایک منٹ ذرا چاہیے۔ علیم صاحب چونکہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے، میں اس لیے علیم صاحب کو علیم صاحب ایک منٹ، ہاں جی علیم صاحب ایک منٹ منصور دے دو، میں پھر بیک اپ جی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کا جو کویسچن تھا نا ندا والا یا خلیفہ صاحب والا، وہ ان کا سوال تھا سہیل احمد صاحب سے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، آپ نے اناؤنس کر دیا، وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو بات چل رہی ہے وہ مسٹر بمباسٹک کے کویسچن کی چل رہی ہے۔ اب جیسے سہیل صاحب اپنے جو ان کے سوال سے لاجواب ہو کے وہ درود شریف پڑھ کے ٹر گئے ہیں، تو یا تو چودھری صاحب درود شریف پڑھ کے چلے جائیں، تو یا پھر مسٹر بمباسٹک کا جو جتنا سوال ہے اور جس موضوع پہ ہے، اب اس میں ندا یا کسی اور کیس کے حوالہ نہیں بنتا، جو انہوں نے ان کے آگے سوال رکھا ہے اس کا اسی طرح جواب دے دیں، یا کہہ دیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یا درود شریف پڑھ دیں۔ بس اتنی سی میری بات تھی جی، بہت شکریہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جزاک اللہ۔ بہت میری آواز آ رہی ہے ویسے؟ یہ بتا دیں بس۔ درود شریف پڑھ کے ٹر گئے ہیں، تو یا تو چودھری صاحب درود شریف پڑھ کے چلے جائیں، تو یا پھر مسٹر بمباسٹک کا جو جتنا سوال ہے اور جس موضوع پہ ہے، اب اس میں ندا یا کسی اور کیس کے حوالہ نہیں بنتا، جو انہوں نے ان کے آگے سوال رکھا ہے اس کا اسی طرح جواب دے دیں، یا کہہ دیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یا درود شریف پڑھ دیں۔ بس اتنی سی میری بات تھی جی، بہت شکریہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جزاک اللہ۔ بہت میری آواز آ رہی ہے ویسے؟ یہ بتا دیں بس۔ جی آپ حل بتانے لگے تھے، حل بتائیں سوال کو۔ جی علیم بھائی، علیم بھائی میری جی میری آواز ڈبل ہو رہی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں لیو کر کے رائٹ وے شامل ہوتا ہوں۔ مسٹر بمباسٹک بھائی، آپ کو وہ واقعہ پتا ہے، وہ مالک بن نویر کو جب حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا تھا، وہ واقعہ تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر نے ان کو کیا کہا تھا؟ جی پیش کریں قانون صاحب۔ جی وہ جب ان کو قتل کر دیا نا حضرت خالد بن ولید نے۔ اچھا جی، میں علیم بھائی میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دوست صرف حال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مسٹر بمباسٹر صاحب ہیں، انہوں نے حال پوچھا ہے اسلام اور اسوہ حسنہ کے مطابق اور قرآن سے، صرف اپنی آپ نے
मर्जी का हाल नहीं बताना, क्योंकि आपकी और मेरी तो कोई वैल्यू कोई नहीं ना, हम कौन है, हम मैं कौन सी वही बात हाल करेंगे? बताऊंगा, मैं वही हाल बताऊंगा जो मैं फेयर समझता हूँ। मुझे नहीं मेरे नहीं नहीं बात नहीं में नहीं नहीं नहीं, आप कौन है? फिर हमारे खलीफा ने भी फेयर हल किया जी अपनी मर्जी के मुताबिक, आपकी तो हैसियत और वक़्त ही कोई नहीं है, ना मेरी है। तो मेरे भाई आप हल बताएं कुरान और हदीस की रोशनी में और उसवा हसना की रोशनी में। आपके नजदीक नहीं, आपकी और नजदीकी और दूरी नहीं चलेगी। हम किसी बात की मूली नहीं है। आपने कहा कि इस्लाम के खिलाफ गए हैं जी खलीफा साहब, आप इस्लाम के मुताबिक चल के दिखाएं जी, बताएं हमें हल। अपने मुताबिक क्यों आप दोगे मेरे भाई? वाहे जब मैं बात करूंगा फिर मुझे बारी देना, बोलने का मौका देना प्लीज। आप कर लें बात मुकम्मल। मैं आपको टोकूंगा अगर आपने इस्लाम, कुरान और रसूलुल्लाह की उसवा हसना से इधर उधर के मेरे मुताबिक या कानून के मुताबिक या ब्रिटिश कानून के मुताबिक या पाकिस्तानी जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक या हदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं, बात करो कुरान से और उसवा हसना से कि ये हाल थे। आपका खलीफा ये क्लेम करता है कि वो खुदा का सच्चा खलीफा है और रसूलुल्लाह की उसवा हसना पे चलते हैं और वो कुरान के मुताबिक फैसला करते हैं। उन्होंने किया गलत, हाल था ये जनाब। पेश करें मोहतरम। ले अब मेरी बारी है सर। जी मोहतरम आपकी बारी है जी। मिस्टर बम्बास्टर साहब, मैं आपको हाल बताने लगा हूं, सुन लेना। देखें, यूके में निदा के साथ रेप हुआ है। ओ कुरान जो कुरान हदीस दा यूके में हुआ है। कुरान जो बंदा सामने बैठे हैं। बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट। यूके में निदा नसर के साथ उसका क्लेम है कि मेरे साथ रेप हुआ है और यूके के कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। वहां मैं कहता हूं ये रेप निदा के साथ मक्का में हुआ है। तुम छोड़ो इस बात को कि यूके में हुआ, मदीना में हुआ, चौधरी कहीं साहब भी मेरी हो बात सकता सुन है। हाल बताओ इस्लाम के मुताबिक यूके ला को मारो गोली। हम पेशाब करते हैं यूके के कानून पे, बात करो रसूल अल्लाह पे। ये है जी जमात, ये वो जमात जिस मुल्क में रहते हैं उस ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੱਸ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਿਰੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰੇਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, इसको ਜਹਲ पूछो। ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। नहीं सबसे बड़ी बात इस्लामी पूछण डे या तू ਸਾਨੂੰ यूके ਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। कानून के बारे में बताएं। कानू साहब, सबसे बड़ी बात है कि यूके की गवर्नमेंट अंधी है। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਫੈਸਲਾ। ਜਹਲ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਿਦਾ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲੈ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਸ਼ਤੀ ਔਰਤ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡਈ ਏ। ਜਾਹਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਬੰਬੈਸਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਬੈਸਟਿਕ ਓਏ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ 1 to 1 ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬੰਬੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹੈ ਜੀ ਰੇਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਪ ਤੂੰ ਸਬੂਤ ਲਿਆ, ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਲਿਆ। 4 ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਬੋਲਣੇ की। यूके की अदालत ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। चौधरी साहब की हाल अलीम भाई मेरी बारी है बोलने की। अलीम भाई मैं करना अलीम साहब गल देना चौधरी साहब ना। जज साहब नहीं बारी होना दी चौधरी साहब दी। उस तो अलीम भाई मेरी बारी है। आपकी जमात के लोग देखें क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए मैं 2 बंदे ऊपर रख नहीं रहा। आपकी बारी है, बात करें उसके बाद वो बोलेंगे। भाई आप बोले। देखें बात ये है, ये दोस्त मुझसे हाल पूछ रहे थे यूके के अंदर रहते हुए शरी अदालत लगा के बैठना कानूनन जुर्म है। मिर्जा मसरूर साहब
पहला जुर्म ये कर रहे थे कि यूके के अंदर रह के शरई कानून लागू कर रहे थे। जमात अहमदिया का क्लेम है हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ जमात अहमदिया जिस मुल्क में रहती है उसके कानून को तोड़ती है, ठीक और हो गया, सबसे पहले तोड़ने वाला मिर्जा मसरूर है। सही हो गया। अब आपकी बात मुकम्मल हो गई है जनाब जी जी। अब जट साहब इस केस में मिर्जा साहब को आगे होना ही चुप चाहिए कर था। जा, मैं तेरा केस लाना वा चौधरी साहब की हो गया जे, मैं भी इत्थे ही हाँ, मैं भी तेरे पिंड दा, मैनू भी दसना केस अपना। तू इत्थे आके साडे फैसले करना है, पहले अपने घर दा फैसला कीता ही कि नहीं हो कीता, मैनू ये ते गल दस। ये मेरे सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का भी जवाब देना, मैं तेन जी गल करन तेरा भी तो वही है ना। मैनू दस तू अपने घर का फैसला किया है, किन्ने चिर हो गए ने तेरी सिस्टर भज गई है घर तो, ओहदा कोई फैसला किया तू दस। ये निदा नसर दी आईडी दा रेप दा जवाब है। ये ਉਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 70-80 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਬੋ ਪਟਿਆਰ ਦਾ ਦੱਸ, ਮਤੀਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਲਾਈਆ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। अच्छा रुके हाँ जी हाँ जी जमात अहमदिया वाले दोस्त रुक जा मेरी बात सुन ले। मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि मैं गुफ्तगू के अंदर चाहे वो एक एक बंदा बात करेगा, वो दोनों बंदों को मैंने नीचे उतार दिया। अब नए दोस्त बात करना चाह रहे हैं, आप भी बात करना चाह रहे हैं, बराबरी की सतह पे बात होगी। अगर वो अपना सवाल रखेंगे, आप अपना सवाल रखें, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। गुफ्तगू करें, बारी बारी करें, और अगर आपस में बात करना चाह रहे हैं तो करते रहे। मेरे ख्याल में कोई टाइम फिक्स करना है कर लें, या वैसे करनी है तो करें, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी जी जट साहब हुक्म करें। जी जट साहब आप माइक अनम्यूट करें, आप करें बात। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਮਾਲਾ ਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। मैं मेरा सवाल जमात अहमदिया कोले तेरा सवाल असी जवाब नहीं तेरा, तू कौन हुंदा जेड़ा सानू आके सवाल करे? अल्लाह दे बंदे ना तिन्ना चो ना 13 चो आ ते बंदे ही बेवकूफ ने जेड़ा तेरा सवालों का जवाब देण दे सन। तेरा सवालों का जवाब यह ही है, तू दस मैनू, तू दस तेरा की औकात है, तू मैनू दस मेरे को MP MN या बुरगा मास्टर है उथों दा पे मैं सवाल करन दिया, तेनू अपने घरों दूसरी वारी कोई सालन नहीं दिंदा, तू सानू आके सवाल करन दिया। दस राजा साहब ए फुल अपनी बुंड विच मारो ते फैसले तू भी अपनी भैन दे चुथे च फुल मार, भैन यक्को सारे फसाद दी जड़ तुसी। चल गल कर। अस्तगफार अस्तगफार आया जी जमात अहमदिया तेरी भैन ना जेड़ी होया ना, जेड़ा साबो पटियार च तेरी भैन दी लन वजह सी ओदी गल दस। जेड़े साइयां ने तेरी भैन नू सूबे ते जाके ये आई ते ओनू फिर फांसी दित्ती गई, ओदी गल कर पुत्तर। ओदी गल नहीं कि दसनी, ओ दस आखिया तेरी भैन नाल ज़ना करदा रहा मैं, ओ दस जेड़ी तेरी भैन छोटी 17 सालां दी फड़ी गई सी मतीन दे भरा शकील है ना, ओदी गल दस। ओ जिस वजह तू भैन चौदा तू ओनू शामो शाम विआह ताई गश्ती दा पुत्रा, ओदी गल दस। तेनू होर ज़बान ते गल ही नहीं, ओ ते बंदे साडे भैन चो ना हले जेड़े तेरे नाल गल करन दे, बोंडू सारे मुला दा तू है, गल कर। जमात अहमदिया दे जवाब, जमात अहमदिया पुत्र तेन जवाब तू दस पे तेरा ना कोई 3 चो ना 13 चो बोंडिया सारे मुल्क दिया, तू सानू आके सवाल करे फलाने का जवाब दियो, तेनू तो लन तो नहीं कोई मारदा वड्डे सवाल जवाब करने वाले। दस तू ना तो दो बंदे दो, मैं आख्या दो नंबर बंदा तू दस। जमात अहमदिया तेरे ना ना जमात अहमदिया कोई तलक वास्ता नहीं, अपना मेरा अपना मौकफ है, तू साडे नाल आके सवाल करन दिया। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਨਤੀਜਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੋਈ अलीम साहब बात सुने, आपने जरूर गाली गलौज का मुकाबला करवाना था। बात यह था कि उस बंदे के पास कोई जवाब था ही नहीं। अभी पहले वो गया है कि जी हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने गलत फैसला किया और अन इस्लामिक किया। हमने कहा जी इस्लाम के मुताबिक उसका सोल्यूशन बता दे। वो यूके के लॉ के ऊपर मैं नहीं चाह रहा था, असल में मेरा तो काम इतना ही कि एक एक बंदा बात करे। जो बात करने लग पड़े ये जो बंदा मैंने आपको ड्रॉप किया था, तो वो जट साहब आ गए तो फिर मैंने आपको ड्रॉप किया। मैं तो सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि एक एक बंदा बात करे, बस इसलिए मैंने। इसके ऐसे चौधरी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। ये बेचारे डंगे हुए हैं। तीन इनकी लड़कियां हैं जो कि अहमदी हैं। इनकी पहली बीवी भी अहमदी है जो इनसे मेरा तलाक ले चुके हैं और गैर अहमदियों में चले गए। उन्होंने इसको लड़की दी है मुसलमानों ने, तो उसकी वजह से ही मुसलमान हुआ। अहमदी है जो ऐसे चौधरी साहब अहमदी थे पहले, ये पक्की वो बात है। अहमदी थे, अभी गैर अहमदी हो गया ना। उधर वो एक औरत के साथ इश्क हो गया था गैर अहमदी के साथ, तो उसकी वजह से इनको ज्वाइन करना पड़ा है मुसलमानों की जमात को, तो उधर चले गया औरत की वजह से। और दूसरा ये बात है कि जमात अहमदिया के इनके ऊपर बड़े एहसानात है। ये एक टांग से लंगड़े हैं, इनको पोलियो हुआ था बचपन से, और जमात ने पैसा खर्च ये बात पहले भी मैंने हॉस्पिटल सुनी में है, इनसे पूछ लेते हैं। इनका नहीं वो इनसे पूछने की, इनका इलाज किया। हमेशा ये चंदे पे पलते रहे हैं, इनका पूरा खानदान। ये काफी गरीब घर से तल्लक है इनका। और उसके बाद इनकी बीवी जो थी वो कैनेडियन सिटीजन थी, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, इसे बुलाया और इसे घर में बैठा के खिलाया। वो नौकरी करती थी बेचारी, और इसकी 3 बेटियां भी पैदा हुई उसमें से। फिर इसने इश्क कर लिया। बेसमेंट में एक औरत आई गैर अहमदी किराए के ऊपर, तो उसके साथ फिट हो गया। हैं जी, तो ये तो इस बंदे बेचारे की औकात है कि गैर तो जमात अहमदिया के टुकड़ों पे पढ़ने वाला अभी सवाल कर रहा है। अभी चले, वो तो एक दूसरी बातें थी सारी। मैंने ये अर्ज की थी इन भाई साहब से, इन भाई साहब से कि मेरे चौधरी साहब तुसां कोई भी गालम गलोच नहीं इन्होंने करना इन्होंने अच्छा करा। अब्दुल्ला साहब उन्हें चकल है, तुसी कोई अब्दुल्ला तू खामोश है, माइक नहीं माइक बंद ए खलीफा ते दी नमाज़ी ना ज़ना करने वाले हम जवाब देने दियो। ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ और ਨਹੀਂ ਹੈ यार अब्दुल्ला ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨ घर हर जगह पे जना हो रहा है। हर घर की कहानी ये है। यूट्यूब खोलो, अभी कल ही वो मौलवी साहब पकड़े गए अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में कि 2 बंदे, एक बच्चा 13 साल का था और मौलवी साहब जी तकाफ पे बैठे हुए। वो बच्चा गया वॉशरूम में और मौलवी साहब ने उसके साथ वो कर दिया जी बदफेली। और उसके बाद अच्छा जी, बात ये है जी ऐसे चौधरी साहब हमें हल भी बताएं मौका दें इस्लामिक बोलने रूह का। से, इस्लामी रूह से हल बताएं मोहतरम, पेश करें। आप अपने इतराज जो हमने गलती की है उसको ठीक कर दें जी इस्लाम की रूह से। शाबाश, इधर उधर नहीं जाना, कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर इधर उधर गए तो फिर गुफ्तगू बंद, फिर इनको उतार दें अलीम भाई। नहीं टू दी पॉइंट बात करेंगे, जोरी साहब टू दी पॉइंट जवाब देंगे जी। हाँ जी 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 चौधरी साहब हल पेश करें मेरे मोहतरम। उसको बोलने तो देना, चौधरी साहब के बच्चे बोलने तो दे उसको। यार आप तमीज से बात करो और माइक बंद रखो अपना। लो जी नहीं और नदा नसर की गल कर रहे हैं तो मुकात लड़ देना। तमीज से बात करो और माइक अपना बंद रखो। आपको बात करने की तमीज नहीं है। जिन्हों तुसी नबी मनदे हो, खंजीर दी ओदी औलाद है, किसी तरह की तमीज नहीं सिखाई यार नीचे उतारो यार, ये गंदी बच्चों ऊपर थोड़ा सा। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई घर वालों ने। बात कैसे करते हैं, 2 बड़े बात कर रहे हो तो तुम्हारे बाप की उम्र की है चौधरी साहब भी और मिस्टर बोम्बास्टिक भी, और बिल्कुल शर्म है नहीं है सिखाई किसी ने। यार ये नीचे कौन उतारता है ओ भाई जी। चौधरी साहब टू दी पॉइंट जवाब दें जी। अच्छा अलीम भाई, मेरी आवाज डबल तो नहीं हो रही? आपकी आवाज नहीं सिंगल है, सिंगल है, ताकि आवाज बिल्कुल सही है, लाउड और अच्छा जी देखें, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया, मेरे बच्चे हुए, नहीं छोड़ दो निदा नसर के केस मैं मुझे जमात ने पाला, सब कुछ किया। यार छोड़ दो उस बात को भाई चौधरी। नहीं सर, मैं वो बात आपकी सुन लूं। नहीं ये सारी बातों का ये निदा नसर के साथ जो रेप हुआ है, हाँ जी, ये इसलिए आप लोगों ने किया है कि चौधरी साहब को आप पालते रहे हैं, ये जवाब है? चौधरी सगीर साहब इस्लामिक हल पेश करें अपने इतराज का। और बाबा जो यूके के अंदर शरी
अदालत का शरई वहां पे ड्रामा अदालत करे वो का जुल्म करता है, यूके का कानून तोड़ता है वो। और मेरे भाई जो कानून अगर टूटा और है तो यूके के अंदर 100% आपकी जमात का क्लेम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई बात सुने ना, मिर्जा कानून मुझे बताएं, यूके के अंदर शरीफ फैसला होता है जना का? और बात तो सुनो, किलन क्यों लग गए यार, आराम न ल। जी आप सुनाएं, जी आप सुनाएं। तो यूके की अदालत या जो निदा बीबी हैं वो यूके की अदालत में गई है कि नहीं, ये बताओ, गई है? वो गई है या नहीं गई, वो नहीं, बात की बात है। मैं यूके आपको के अंदर मिर्जा साहब का शरीफ फैसला करना कानूनन जुर्म है। ओ अच्छा चल या अल्लाह, चलो जी कानूनन जुर्म है मिर्जा साहब का फैसला करना। मैं बता रहा हूँ कि मोहतरमा निदा साहिबा गई हैं यूके में अदालत के पास कि नहीं है? आप पहली बात का जवाब दे लें, अगर देना है तो। नहीं देना तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर सकता। यार मिर्जा मसरूर साहब का यूके में रह जो के मिर्जा शरीक फैसला मसरूर- करना कानूनन जुर्म है। जो मिर्जा मसरूर साहब ने कानूनी जुर्म किया है, अदालत उनको सजा दे या ना दे, कानूनी जुर्म उनका साबित है जी। यार तुम इस तरह करो ना सगीर चौधरी साहब, टिकटॉक पे किलने की बजाय आप यूके गवर्नमेंट को कांटेक्ट करें कि मिर्जा मसरूर साहब ने ये जुर्म किया ताकि उनको पकड़ लें। वो आप उधर क्यों ही नहीं है। करते? आपके मिर्जा साहब की नवासी के साथ रेप हुआ है, आप क्यों ओए नहीं जाते? लानतिया, मैं क्यों करूं यार, मुझे तो ये पता कि जो उन्होंने फैसला किया ठीक है, तेरे मुताबिक गलत है। मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि उन्होंने गलत फैसला किया है, ओ आप क्यों नहीं एक्शन लेते? ओ काके, अगर गलत फैसला किया तो यूके की गवर्नमेंट पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अन्नी है। वो बाबा कई लोग उनके साथ जुल्म होता है, वो किसी को अदालत में लेके जाने के काबिल नहीं होते, पैसे नहीं होते, वक्त नहीं होता। तो तू पैसे दुनिया में ऐसे कई वाकयात हैं। और तुम्हारी इतनी बड़ी पूरी उम्मत मुसलमान इतनी अमीर है। मिर्जा साहब का शरीफ फैसला करने की कोशिश करना ही कानूनी जुर्म है। साहब आप में अगर जर्रा बराबर भी इंसानियत है ना तो चौधरी साहब का जवाब सुनने दें। उन्होंने देखे 15 मिनट तक चौधरी साहब की फैमिली के मुतालिक बातें की हैं, चौधरी साहब ने सुनी है। चौधरी साहब का जवाब आप उनको देने नहीं देते। उनको भाई जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप। चौधरी साहब थथे हैं, चौधरी साहब थथे हैं, उनको बात नहीं करना आती। यार इसको किसने लिया इस इडियट को? मेहरबानी करें। देखे ना ये किस तरह की बकवास कर रहा है, उनके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तेरी भैन दा कसम है, मैं उसको कह रहा हूँ, वो खुद ही ये सुने, ये जमात अहमदियत की तारीफ सुने, निदा नसर के हवाले से बात की गालियां दे रहा है। वाह जी वाह। आपने तो नहीं बैन दी इसको। फैज भाई आप लीव कर जाए। फैज भाई फैज साहब ये आपके बनोई साहब तो नहीं है, ये पोलियो वाले। मेरी बात सुनो, बम्बीनो मेरी जेड़ा है पूरी मेरी बात सुन लो, नीचे नहीं उतारना, सुन लो। खामोश हो, खामोश हो। नहीं फैज भाई आप लीव कर गए अब जी। अलीम भाई सॉरी। अच्छा मैं खंजीर दी तबलीग कर रहे हैं, मिर्जा खंजीर दी किताबा पढ़। ये यार एक सेकंड कोई बंदा यार, मेरे पास कंट्रोल है मेरे हाथ यार। ये क्या आप लोग खुद उठाते हैं, खुद नीचे फेंकते हैं, खुद म्यूट करते हैं। ये मॉडरेटर्स कर क्या रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा जरा मौका दें। काका स्पाई भी बोलना चाह रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं, हलीम तबीयत के हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं, वो उनकी बात तो सुन लें, ऐसे ना करें। ऊपर से बात जो है वो फैसल भाई इतनी अच्छी चल रही है दोनों की, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, उनको करने दें। आपने आगे तो वो सारा रिदम तोड़ दिया। अच्छा जी, बारी किसकी है जी? जी माइक खोलें जनाब अपने। चौधरी साहब पेश करें इस्लामिक हाल। बम्बास्टर साहब की बारी है जी, वो बात कर लें। मैं ये कहता हूं कि मिर्जा मसरूर साहब का यूके में रह के शरीफ फैसला करने की कोशिश करना भी जुर्म है जी बम्बास्टर साहब। और जो मिर्जा साहब ने जुर्म किया है, जो मिर्जा साहब ने जुर्म किया, यूके में शरीफ फैसला नहीं हो सकता, और ये उन्होंने जुर्म किया, तो फिर मैं तो अलीम भाई मेरी आवाज आ आपकी आवाज ठीक आ रही है। अब दोबारा जाके आना चाहते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल सही। नहीं ठीक है चौधरी साहब आपकी आवाज आ रही है।
जी आपके मुताबिक जी गलत फैसला हुआ है, यूके में रहते हुए शरई अदालत का फैसला नहीं चलता। बात यह है कि आपने कहा कि निदा बीबी का आपके पास फ़ोन नंबर है, तो आप ये करें उनको फ़ोन करें, और अगर वो नई अदालत में गई आपके मुताबिक, जबकि मेरे ख्याल में आपको कुछ पता ही नहीं अपनी बहन के मुतल्लिक, और उनको चले अदालत में चौधरी जाए। साहब, चौधरी साहब तशरीफ ले गए हैं, चौधरी साहब खुद छोड़ के गए हैं मेरे ख्याल में। तो हाँ जी चौधरी साहब, आपको मेरे ख्याल में जवाब मिले हैं, आप खुद छोड़ के गए हैं अगर नहीं मिले तो बुला ले दोबारा, कोई बात नहीं चौधरी साहब। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मैंने काका स्पाई को भी इनवाइट किया है। और यार स्पाई के ऊपर काका आके बात- सफाई भी कोई इंसान का बच्चा है, वो हज़रत मसीह मौत की इतनी बेहुरमती कर रहा है, क्यों बुलाते हो यार? नहीं वो बेहरमती, तो उसको मैं म्यूट कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूरी बात थी उनके पास। तो ऐसे चौधरी अच्छा, नीचे हमारी एक बहन है, वो भी इनको बता रही है कि केस बंद हो चुका है और हर चीज यूके के अंदर तो इस तरह नहीं होता ना, नहीं वो उन्होंने नहीं माननी बात है। लेकिन ये तो शोशा उठा रहे हैं। अगर मैं दरखास्त करूं मास्टर साहब बहन को, मास्टर अगर वो साहब आके तो कुछ थोड़ा सा मास्टर साहब रोशनी डाल केस बंद सके हो तो। गया है, केस बंद हो गया या नहीं? मेरा दोबारा सवाल खोल है। दोबारा खोल लें। नहीं मेरा सवाल है, की सवाल है। यूके के अंदर बैठ के रेप का शरई फैसला करना यूके के कानून की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है? मैंने भी देखिए जी, ना तो मैं जज हूँ, ना लॉयर हूँ, और ना मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में हूँ, ठीक है ना जी। मैं तो आम सा बंदा हूँ। आप लगता है बहुत पढ़े लिखे अक्लमंद है। आप इस तरह करें कि यूके में जाएं और उनकी पार्लियामेंट के बाहर बैठ के ना कैंप आउट करें और प्ले कार्ड उठा लें कि जी आप एक बंदे ने यूके में रहते हुए बहुत बड़ा जुर्म किया है और वो बंदा जी इधर रहता है, मैं आपके साथ चलता हूँ, उसको पकड़ ले। तो आप ये करें ना, सारे ठीक है। भी लड़ते पे उसी को ਤੁਹਾਡਾ कर्जा देना मेरे भाई, हम तो आम बंदे हैं। हाँ जी, आप आम बंदे हैं। आप एक बात की तस्दीक कर दें, फिर हमारे आपकी बात जिसे खत्म। गल दी मैं तस्दीक करा हूं। अच्छा, एक बात मुझे आप बता दें ओके कि मिर्जा ताहिर साहब को आप उनकी तस्वीर आपने लगाई हुई है आमदी, आप घर में लगाई हुई है? आपको क्या तकलीफ है? ये सवाल नहीं है, मैं जो मर्जी करूं। आपने घर में अपना आप मिर्जा ताहिर साहब को अपना खलीफा मानते हैं? यार तुम्हें शक क्या है? नहीं मैं वैसे तस्दीक कर रहा हूँ, आप मानते हैं? इस बात की तुम्हें मैं जमात अहमदिया से मेरा तल्लक है, ये काफी है तुम्हारे लिए जवाब? और हाँ, ये काफी है। हाँ, तो मिर्जा ताहिर साहब की नवासी के साथ रेप हो तो कैंप आपने लगाना है पार्लियामेंट के बाहर के मैंने लगाना है? मैंने तो छोड़ दिया। मैं तो उस फैसले से एग्री हूँ ना कि जो हुआ ठीक हुआ, बिल्कुल। आप नहीं आप मिर्जा जो ताहिर साहब की नवासी का रेप हुआ है, आप बिल्कुल मुतमिन है कि जो भी मिर्जा मसरूर ने किया ठीक किया है? जी, मिर्जा मसरूर अहमद साहब मेरे खलीफा वक्त ने जो फैसला किया है, जो उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने फैसला तो नहीं किया, क्योंकि उनके पास यूके के गवर्नमेंट के का कानून का तो उनका तो कानून नहीं ना वहाँ पे चलता। तो उन्होंने तो मशवरा दिया अपनी भतीजी को कि बेटा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि वो तो ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड, तो उन्होंने तो खुदा और रसूल के मुताबिक ही फैसला करना है, वो कोई दुनियादार आदमी तो नहीं है। तो उन्होंने मशवरा दिया उस बच्ची को कि बेटा देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चार जो हैं गवाह होने चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है, और इससे तुम्हारी बेहुरमती होगी। और वो देखो जो खलीफा वक्त की फरासत जो थी वो बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे जैसे चूड़े चपड़े उनके मुंह पे भी निदा बीबी का नाम आ रहा है कि मशहूर हो गई है। बिल्कुल ये गंद था जो उछलना था कि हर चूड़ा चपड़ा जिसको अपनी माँ बहन का नहीं पता कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है और कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, वो भी निदा बीबी का नाम ले रहा है। और खुदा के खलीफा ने यही मशवरा दिया था उस अल्लाह की बंदी को कि बाहर आ जाओ, इस बात को मत उछालो, कुरान और हदीस के मुताबिक इसमें तुम्हारी बेहुरमती और बेइज्जती होगी। और वो हो गई है बात। अभी हर जगह पे निदाबी को इज्जत से नाम लिया जा रहा है। नहीं, अच्छा, बात ये है, आपका ये कहना है कि निदा नसर के साथ जो रेप हुआ है उसकी वजह से मैं चौधरी साहब जो है पूछता हूँ, जो आपकी बहन के साथ रेप हुआ है वो किसने किया था? चौधरी साहब किने कीता दसो, तुसी ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ।
ਐਸ਼ਾ ਵਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਰ ਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਜੱਟ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਣੀ ਖਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮਣੀ ਖਾਨਾ ਮਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਰਿੜਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮਰਬੀ ਇਹ ਆਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਛੜਨੀ ਉਹ ਮਰਬੀਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੱਟੀ ਰਿੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਣੀ ਰਿੜਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਬਗੈਰਤੁਲ ਵਰਦੂ ਸੁਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਣੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਵੇਟ ਕਰ ਯਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰੁਕ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਡਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਲਕਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ कोई गाली नहीं कोई कुछ नहीं मैं सिर्फ मलक साहब वास्ते आया हूँ करो गल मलक साहब ना अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई आपकी आवाज बहुत दूर से आती है सो कुछ नजर नहीं आवाज नहीं आती आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती या मलक साहब इतने ही हो जी शायद साहब मलक साहब नहीं जी है मलक साहब तो पीछे ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मौजूद ने ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ किसी दी भाई जी ਦੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ लख दी लख मुबारक होए लख दी लख होए मुबारक ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ बिल्कुल हाँ जी अस्सलाम वालेकुम पर आ जाता है इस्लाम दाऊद साहब बड़ी बात है आज तक बात है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੂਜਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 80% ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਸਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ है जना को छुपाओ और जो जुल्म हुआ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਰੁਕੋ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ कुमन साहब बहुत शोर है आपकी आवाज में अब काका स्पाई की बारी है जी काका शायद साहब ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ मेरे ख्याल च मैं उन्होंने चुकना सी गल शुरू करो जी काका स्पाई माइक आपके पास है टाइम शुरू है जी आपका जी काका स्पाई शायद साहब रिक्वेस्ट कर रहे थले ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ मैं उनको रिक्वेस्ट उठा रहा हूं आप बात चुको शुरू है ਚੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ और मैं चुक लेना उनको क्योंकि जबरदस्ती है ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ
ओ भाई बात करो। काकाश भाई गल कर। भाई जो आपके अहमदिया ओ भाई 1 मिनट रुके, आपके सिग्नल नहीं आ रहे हैं जी, आपके सिग्नल्स नहीं है भाई। काकाश भाई आपके पास मौका है, मैं उठा रहा हूँ उनको। अगर उनके आते ही आपने बात शुरू करनी है तो उनकी मौजूदगी में बात कर लें। ये मैंने उनको ऊपर उठा लिया है, अब तो बोले जी। काकाश भाई बिस्मिल्लाह, काकाश भाई बिस्मिल्लाह करो। ओ काकाश भाई, काकाश भाई मैं मलक साहब ना गल करके ना तो चला वा। काकाश भाई को पहले मौका दे दें। शाहिद साहब जरा 1 सेकंड। काकाश भाई को आप कहते हैं वो बात कर लें, फिर वो मलक साहब से बात कर लेंगे जी। काकाश भाई अपने प्यो का नहीं पता ना मिर्जे खंजीर नू, इसे तरह अलीम तेनू भी अपने प्यो का नहीं पता, तू भी हराम दी औलाद है जिवें मिर्जा खंजीर हराम दी औलाद है। इस वास्ते दूजे दे प्यो तो पहले तू अपने प्यो का पता कर ले, तेरा प्यो कौन है। दूजे नू कह यार ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਨਾ ਬਕਵਾਸ कि मिर्जा कौन लोग हो ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ कोई ने ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ फटाफट कि वो हराम दी औलाद है, ਉਹਦਾ प्यो ओए हाल स्मॉल। अच्छा यार ये बस आपने यही बात करनी थी। गश्ती दा पुੱਤਰ ਸੀ गश्ती ਦਾ रुक जाओ गश्ती ਦਾ यही गल करनी सी तुसी कि मजीद कोई गल करनी है। थोड़ी देर बाद दोबारा तशरीफ ले आयो और सानू फिर दोबारा अपने अच्छे ख्यालात जिहड़े ने वो दस्सियो। बहुत अच्छे काकाश भाई, आप जैसे दोस्तों की हमें बहुत जरूरत है, बहुत मुफीद दोस्त हैं आप, बेहतरीन। आपके कान के ऊपर ऐसे ही रखी जाएगी जहां नजर आएंगे और आते रहा करें जी। शाह साहब अच्छा मलक साहब, मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਾਈਕ, ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਧਮਕੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। जट साहब एक मिनट कुछ भी नहीं हो चला जी। शाहिद साहब आपकी वो ड्रॉप हो गए हैं, आप मेरे ख्याल में कुछ गलती से या आप चले गए हैं जी। आप धमकी ना दें कोई इस तरह की, वैसे बात करें मलक साहब से जी। अच्छा मैं थले नहीं गया, मैंने किसी ने उतारिया। अच्छा जी फरमाएं जी। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ उनके नाम कोई है या ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਲਿਸਨ wem hast du Musulman gemacht? Nenn mal einen Namen. झूठ बोल रहा हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं। Ja, kannst du Namen nennen? शराबिये बंदे ने की बंदे मुसलमान करने हो, आप मुसलमान हो, ये बड़ी गल है। हाँ जी चलो मलक साहब, मैं नहीं गल करनी सी, ठीक है। वैसे भी मनु मुनाफिकां दे विच बहन दा कोई शौक नहीं। बहुत अच्छा लगा तुसां जेह्ड़े बंदे मुसलमान अपने वर्गे कीते ने, अल्लाह ताला जज़ा दे तुहानू। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ, ਫੈਸਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੋਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਾਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੂੰ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਦੁੱਬਰ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ म्यूट करके की साबित करना चाहते? ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਭੈਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਰੋਡ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਸਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਲਕਾ ਛੱਡ
ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਜਾ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ। ਆ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਗੜਾਂਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ मैं। चलिए जी, ये थे हमारे शाहिद साहब जो कि बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार करेंगे। पहले ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਮਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਰਾ। ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। राजा जवेद साहब तो मेरे ख्याल में अगर ऊपर आना चाहें नहीं यार थले ने गाला कटन डे ने दे। अच्छा राजा साहब गुफ्तगू करें आप आके अच्छी सी जरा बात अच्छी से गुफ्तगू करें, प्यारी प्यारी चीजें बताएं। नहीं जी राजा जवेद साहब मेरे ख्याल में ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं जरूर आवांगा। मेरे ख्याल च राजा जवेद साहब किते बैठे ने ते गोडे जुड़ गए ने, उठिया नहीं जा ਯਾਰ ਜੱਲੇ ਬੈਠਾ ਕਸਮੇ। ਆ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਤ सुन कर नीचे उतार दो। हाँ आओ तो सही ऊपर। हाँ चले, मैं राजा जवेद साहब को लेता हूँ ऊपर, तशरीफ ले आए। ले बात करें। बात करने में तो कोई हरज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बात करें वो। राजा जवेद